श्री वाहिगुरु साहिब जी। मन्ने पावै ओख द्वार, मन्ने परवार साधार। मन्ने तरै तारे गुर सिख, मन्ने नानक भवै ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। जुग जुग अटल शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र हजूरी का आनंद माणते हुए समूह सतसंगी जन गुरमुख प्यारे अमृत वेले तो गुरु दरबार दियां हाजरियां भरते हुए बड़े ही सत्कारयोग भाई साहब जी उन्होंने पासों श्री आसा जी की वार का कीर्तन बड़े अदब प्यार सहित सरवण करते पे सन। सो तख्त पर विराजमान चगर शतर तख्त के मालक गुरगद्दी पर सुभायमान जुगो जुग अटल पतित उदाहरण भक्त वशल उस अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु निरंकार का निज स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के दर्शन दीदारे करते हुए अमृत वेले दी जो महान घड़ियां सुहावना जिहड़ा समा है उन्हें सफलियां बना रहे हैं। सो आओ जी उस अमृत के दाते पुत्रां दे दानी दशमेश पिता जी के वलों जो सरबत संगत नूं फतेह दी दात बख्शी हुई है, दोनों हाथ जोड़ते हुए साहिब सच्चे पातशाह जी नूं सीस झुका के करो जी फतेह प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह कुल कायनात का भला करदियां होइयां जिवें जिवें संसार विच विचरदे हन उवें उवें साहिब सच्चे पातशाह संतां नूं गुरमत दा गुरबाणी दा ज्ञान बख्शदे हुए उस परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख के नाल जुड़ के उस दाते वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा नूं किदां प्राप्त करना। तकरीबन एक गल हमेशा तो चलती आई है कि हे जीव उस दाते उस परमात्मा उस वाहिगुरु नूं मिल के उस दाते दे गुणां नूं धारण करके साहब जी कहने लगे कि जे जीव वाहिगुरु परमात्मा दे गुणां नूं धारण करता है और उस दाते अकाल पुरख परमात्मा दे निजी जिंदगी नूं अपनी जिंदगी दे विच अपना लेंदा है, सिद्धांत नूं अपना के
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦ ਝਲਕ ਪੈਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗਾ ਕੋਈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਬਣੀ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਕਦੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਨੈ ਭਾਵੇਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਿਵਾਰੈ ਸਾਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਸ ਭੈੜਿਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੇਗਾ, ਅਪਣਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਬਤਾ ਕਰਦੇ ਮੰਨੈ ਭਾਵੇਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੋਖ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਤੀ, ਮੋਕਸ਼ ਮੁਕਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾ ਲਵੋ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦੋ, ਭੂਮੀ ਸੇਜ ਦਾਨ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਕਬਨ नरक क्या स्वर्ग विचारा संतन दौड़ आते अंकाहों की कांडा कटते अपने वर प्रसाद। कहने लगे केड़े नरक की गल करदा, केड़े स्वर्ग की गल करदा। साहब कहने लगे किस नरक दी गल्लां करन लगे हो? भगत कबीर साहब जी कहने लगे कि उस नरक की गल करदे पे हो जिहदे विच तुसीं कहने पे हो कि मरण तो बाद मनुख नूं तपते तेल दे कड़ाहे विच उबालिया जाए। तुसीं उस नरक की गल करदे पए जिहदे विच तुसीं कहने कि मनुख नूं लिजा के उत्थे अग दे विच झोक दिता जांदा, अग दे विच साड़ दिता जांदा। किहड़े नरक की गल करदे पए हो? किहड़े स्वर्ग की गल करदे? उस स्वर्ग की गल करदे पए हो जिहड़ा मरण तो बाद तुसीं कहंदे हो प्राप्त होवेगा। भगत कबीर साहब जी कहने लगे इहो जे नरक ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸਵਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਉਡਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ।
हम काहू की कान ना कढ़ते अपने गुर प्रसन्न। कहते कि मैं जिउंदियां ही अपने गुरु की कृपा दे नाल जिउंदे जी शरीर दे विच रह के, क्योंकि मैं गुरबाणी नाल भगत कबीर साहब कहने लगे उस वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा नाल जुड़ चुकिया, मेरा एक भेद हो गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ हे ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਚੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਧ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਜਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ, ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਚਲਵਾ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੂਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ठंडिया पानिया दे विच खड़ खड़ के कोई चलिया नहीं कटना पवे। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह यही तो सारी उम्र वहम भरम पखंड करने वाले समझाते रहे। मन्ने पावे मुख द्वार कहते जे गुरु की गल मन लेना है तो मुक्ति का द्वार जिहड़ा है सतगुरु कहते तेरे वास्ते परमात्मा अपने आप खोल देता है। जिदा असी गुरुद्वारा साहब आइए भावे कितने भी गुरुद्वारा साहब हो गए, आनंदपुर साहब, तरन तारण, दरबार साहब या किसी भी विदेश की धरती में जाके गुरु घर में जदों जाने उत्थे सानू दस्सण दी कहण दी जरूरत नहीं पैंदी कि दरवाजा खोल। गुरु के दरवाजे, गुरु घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते। अधी रात दरबार साहब चले जाओ, आनंदपुर साहब चले जाओ, पटना साहब, हजूर साहब चले जाओ, उत्थे दसना नहीं पैंदा कि दरवाजा खोलो, क्योंकि उत्थे पता कि असीं गुरु के दर्शनां वास्ते आए। इदां ही सतगुरु कहण लगे कि परमात्मा वाहिगुरू अपने आप खुद तेरे लिए मुक्ति का दरवाजा खोल के बैठा होया है जे तू ओदे सिद्धांत नूं अपना ले, जे तू गुरु दे कहे हुए वचनां नूं अपना ले। साहब ने बड़ा सीधा सीधा सिंपल जिहा रस्ता धारण करवाया से कि गुरु दी जिहड़ी बंदगी है, जिहड़े गुरु दे नाम है उन्होंने अपना के कर्म कांड भैड़े माड़े कार्य छड़ दे। पर दुखांत अज ये है कि गुरु दे कहे हुए वचनां तो मुंह मोड़ के असीं वो सारा कुछ करना आरंभ कर दिता जिहड़ियां कम्मां तो गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह रोके। साहब कहने लगे तेरे अपने बीजे हुए कंडे जिहड़े वो फिर तेरे ही पैरां विच वजदे जदों वो तैनूं चुगणे पैंदे। ते मालिक जी कहने लगे गुरु दे बचना नूं मन के अपना शरीर रूपी जिहड़ा तेरा घर है मन्ने परवारे साधार कहने लगे इहनूं सुधार ले, इहदा उधार कर ले। गुरु दे बचना नूं अपना के, गुरु दे बचना नूं सुन के मन्ने मन ले, गुरु दे कहे हुए सिद्धांत नूं परवारे तेरे इंद्रे जिहड़े तेरा जिहड़ा शरीर रूपी ढांचा है, क्योंकि सोच विचार तेरे मन विच है अते उस माड़े चंगे काम नूं अंजाम तेरा शरीर दिंदा पिया। सतगुरु कहने लगे तेरे मन में विचार आया कि अज कुछ आ माड़ा कार्य कर लिया जाए ते तेरे शरीर ने इस नाल साथ दे दिता। ते साहब कहने लगे दोनों का एक जो मेल होया दोनों ने मिलके माड़े कार्य नूं अंजाम दे दिता। ते जे मन में ख्याल आया कि अज श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करना है, अज उहदे कहे हुए गुरबाणी के अर्थां नूं समझना है, विचारना है, साहब कहते तेरे मन में ख्याल आया पर तेरे शरीर रूपी घर ने उस चंगे काम नूं अपना के गुरु दे अगे बेनती कीती कि दातिया हुण इन्नी को मेहर कर दिओ कि अज जे अपार किरपा कीती इस मन दे विच फुरना भरिया ते गुरबाणी दे नाल जुड़ना है, बाणी दे नाल साझ पा के तुहाडे गुणां नूं गाउणा है। ते दातिया ये चंगा कार्य इस ही शरीर रूपी परिवार अंदरिਆਂ तो होया है ते मेरे उत्ते इन्नी को मेहर कर दिओ कि इस दीवी तौर ते तुहाडे नाल साझ बणी कि सर्वत मन्ने तरे तारे वैसे इत्थे एक दी गल नहीं कीती, इत्थे सारियां दी गल कीती है। जिहड़ा कोई मर्जी गुरबाणी नूं पढ़ सकदा है, जिहड़ा कोई मर्जी गुरबाणी दा हवाला लैके अपनी जिंदगी नूं सुधार सकदा है। जिसके किसी भी मन दे विच विचार होवे कि अज मैं गुरबाणी नूं पढ़ना है, गुरबाणी नूं सुनना है, गुरबाणी नूं समझना है ते सतगुरु कहंदे मन्ने तरे तारे होए सिख कहंदे कि पुरातन समयां दे विच भी जिन्ने सिख सन उन्हां ने भी गुरबाणी नूं अपनाया। इत्थे सिख दा भाव है सिखण वाला, वो कोई भी हो सकता है, साडा हिंदू वीर मुसलमान भरा भी हो सकता है, साडा सिख भरा भी हो सकता है। इत्थे गल कीती कि सिखण वाले ते जिन्हां ने गुरु तो कोई विचार हासिल करनी है, जिन्हां ने गुरु दे कोलों कुछ प्राप्त करना है, इत्थे उन्हां दी गल कीती। कहंदे हर एक मनुख सच्चे सहब परमात्मा का पल्ला पढ़ सकता है। मन्ने तरे तारे गुरसिख कहने लगे कि गुरु का सिख वही बन सकता है जिन्हें गुरु के विचारां नूं अपना के गुरु के कोलों कुछ चंगा सीखिया। मालिक जी कहंदे इहदे विच कोई रोक टोक नहीं है, कोई इहदे उत्ते ठप्पा नहीं ला दिता गया कि किसी ने पढ़ना है या किसी ने नहीं पढ़ना, या गुरबाणी किसी वक्त स्पैशल है या किसी वक्त नहीं स्पैशल। इत्थे बाबा फरीद साहब जी भी ने, भगत धन्ना जी भी ने, भगत सैन जी भी ने, भगत कबीर साहब जी भी ने, भगत रविदास जी भी ने, गुरु नानक साहब महाराज
पातशाह ने किसी को वितकरा नहीं दिता है, सारियां दा ही अदब कीता है। केवल उन्हां नूं पिछे रख दिता जिहड़े केवल अपने अजे नामां नाल ही जुड़े हुए सन, केवल उन्हां नूं पिछे रहण दिता जिन्हां दे अंदर अजे मोह हंकार ही सी। केवल उन्हां दी गुरबाणी सामने गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने रख दिती जिहड़े उस परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख नूं समर्पित सन। भगत धन्ना जी ने गुरबाणी के राही गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के अनेकों शब्द सानू मिलते। गुरु ग्रंथ साहब जी के भगत कबीर साहब जी के, भगत सैन जी के, भगत सदना जी। इसका भाव है कि गुरबाणी एक साझा ऐसा खजाना है कि जिहदे विच हर प्रकार का भेदभाव छुपिया जिहड़ा लोकां दे मनां विच उहनूं खत्म करने वास्ते गुरबाणी दे विच इन्नी पावर समर्था है कि ऊंच नीच दा वितकरा इस भारत देश के अंदर इन्ना ज्यादा वध गया सी जिन्हां नूं अज शूद्र कहा जाता है। कदे वो समा सी ब्राह्मण दे वल्लों यह संदेश सी कि अपने लक दे नाल एक लम्मा सारा कपड़ा बन ले जिहड़ा तेरे पैरां तो थल्ले जमीन नूं घसीटदा जावे। ओदी वजह सी कि जिथों तुसीं तुरदे पए वो जगह वो भ्रिष्ट हो गई है, तुहाडे पैर लगण वो जगह जिहड़ी खराब हो गई है। इथों उच्ची जात वाले ने निकलना है ते तुहाडे लक दे नाल जिहड़ा बन्निया होया कपड़ा है वो जदों जमीन दे नाल घिसदा जावेगा, रगड़दा जावेगा ते जिथे तुहाडे पैरां दे निशान पए होए ने वो जमीन जिहड़ी एकदम पत्थरी हो जाएगी। वो कपड़ा जिहड़ा है उस तुहाडे पैरां दे निशानां नाल जदों घसेगा ते वो जमीन एकदम पत्थरी हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। क्योंकि इत्थे उच्ची जात वालियां ने भी निकलना है ते तुहाडी नीवे तुसीं नीवे कुल च पैदा होए हो ते तुहाडे करके वो जगह वो जमीन भ्रिष्टी गई है। भाव कि वो जमीन तुरन दे लायक नहीं रही किसी उच्ची जात वाले। पर गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह ने सारियां नूं मान बख्शे। खत्तरी, ब्राह्मण, सूद, वैश्य, उपदेश जो वरना को संत किसी तरह वितकरा नहीं किया। यही एक गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दी वडियाइयां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि उस समय के ब्राह्मणों ਨੂੰ ਚੁਭਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਨ। खत्तरी, ब्राह्मण, सूद, वैश्य इन्हें सारियां नूं साझा उपदेश है। किसी दे नाल कोई वितकरा नहीं। कोई भी आवे गुरबाणी पढ़ लवे ओदी विचारधारा नूं अपना लवे। कहते सारियां दे सिੱਖਣ वास्ते ये रब्बी खजाना गुरु अर्जन साहब महाराज ने साडी झोली विच पा दित्ता। ते गुरु नानक साहब महाराज दे नाल भाई मरदाना जी चलते हैं। तो पहला भी बेनती की कि इन्हां दे वड्डे वडेरे राजे महाराजे दे दरबारां विच राग विद्या दी बड़ी इन्हां दे कोले तालीम सी। बाबा मरदाना जी दे कोले, इन्हां दे पिता जी कोले, इन्हां दे दादा जी कोले, परदादा जी कोले राग विद्या दी बहुत ज्यादा तालीम सी। ते ये राजे महाराजे दे दरबारां विच जदों राग सम्मेलन होना ते उन्हां दे जाके इन्हां ने राग पढ़ने ते बड़े बड़े राजा महाराजा ने आना, अहलकारा ने आना, वजीरा ने आना। इन्हां दे राग सुन के ते बड़ी वाह इन्हां नूं देनी, शाबाश देनी, संगे हीरे मोती संगा इनाम भी देना। पर कहने लगे बाबा मरदाना जी कि जदों गल आउंदी सी भोजन दी, प्रशादे दी, खाण पीण साडे भांडे भी वखरे कर दिते जांदे सन। जदों असीं गाउंदे सी साडे वड्डे वडेरे बुजुर्ग दादे साडे उदों राजे महाराजे सामने बैठे सन ते साडे पिता जी होने साडे दादे होने सामने बैठे सन ते बड़ी वाह करदे सन, बड़ियां ताड़ियां मारदे सन, खुश हो के उन्हां दी झोली विच महंगे पदार्थ पा दिंदे सन। पर जदों नाल बराबर बिठाउण दी गल आउंदी सी भोजन प्रशादे वेले कहंदे साडियां वड्डियां वडेरे नूं वितकरा कीता जांदा सी। पिछे नीवियां थावां ते बिठा दिता जांदा सी कि तुसीं नूं तुसीं साडे नाल नहीं बह सकदा। कहंदे इन्ना मान गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी तुसीं मैनूं बख्शदे पए हो कि मेरे हाथ दा बणिया होया भोजन, मेरे हाथ दा बणिया होया प्रशादा तुसीं खुद छकदे हो। कहंदे कि मरदानिया प्रशादा छकना है। ते जदों मैं तुहाडे मुखड़े तो एक आवाज सुनता हूं ते दाते मेरे मन खुश हो जाता है कि मैं गुरु नानक साहब महाराज की शरण में बैठा होया हां। जेड़े मान सन्मान बराबरता लैण मेरे बुजुर्ग
सारी उम्र तरसते रहे, उन्होंने प्राप्त नहीं हुई। पर गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह एक पल की तुहाडी संगत कीती ते सਦੀवी तौर ते मैं तुहाडा बन गया। जेड़े मान सम्मान मेरे दाते मेरे परदाते मेरे पिता जी तरसते रहे, वाह 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 बहुत उन्होंने कट्टी। संगीत की दुनिया च तलीम बहुत सी उन्होंने कोले, जिहो जे राग वो पढ़ लेंदे सन, किसी की हिम्मत नहीं सी। पर मालका जो इज्जत की गल होंदी सी, मान सम्मान की गल होंदी सी, भांडे वखरे कर दिते जांदे सन, कूर पठाया जांदा सी। पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तुसी कितनी कृपा करते हो मेरे ते, मेरे हाथ दा पड़िया प्रसादा छकते हो, मैनू कहते कि मेरे वस्त्र लिया दे, लीड़े कपड़े सारे मैं तुहानू दिना धो के, ते दातिया कि मैनू उस पैसे ते ले तू ज्यादा मान नीचों ऊंच करे मेरा भोग काम तेरा। भगत रविदास जी भी गुरु साहब अगे ये फरमाते हैं कि दातिया तू नीवियां उच्चे कर दिता, जिन्हां नूं दुनिया मुंह नहीं सी लाउंदी, जिन्हां नूं दुनिया दुरकार भी पई सी, कि तू गोबिंद तो भाव है उस परमात्मा उस वाहिगुरू दे बारे, उस अकाल पुरख दे बारे में जिहड़ा सारियां नूं मान दिंदा है। कहंदे नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, कहंदे वो डरदा नहीं किसी तो, काम तेरा नहीं। कहते कि मेरा दादा ना किसी को डरदा है ना किसी को डराउंदा है, हमेशा सच की गल करदा है, सच की गल लेके चलदा। ते गुरबाणी इदां दा रब्बी खजाना है जिहड़ा सानू जिथे नाल गुरु दा ज्ञान बख्शदा है, अकाल पुरख परमात्मा दे नाल साडी सांझ बनाउंदा है, उथे सहज सच्चे पातशाह कहते दुनिया दे जिहड़े कुरीतियां सन, दुनिया दे जिहड़े भैड़े कारज सन, दुनिया दे विच हीन भावना वाली जिहड़ियां गल्लां सन, उन्हां तो मैं सहज सच्चे पातशाह कहते साडा छुटकारा सानू जिउंदे जी मुक्ति दवाउंदा। गुरबाणी रब्बी खजाने दे नाल जुड़ के इस मनुखा शरीर गुरु दे कहे मुताबिक चला के स्वयं दी खुशियां प्राप्त करे। बाबा दाना जी कहते कि धन्यवाद है तुहाडा कि तुसी सहज सच्चे पातशाह इन्ना मैनू मान बख्शिया। ते इथे गुरु सहज सच्चे पातशाह कहन लगे मन्ने तरे तारे गुरसिख ओही जीव सिख सकता है आगे, जेड़ा गुरु दे सिद्धांत नूं अपना लेना चाहुंदा है। इथे कोई पक्का नहीं कीता कि किसी ने गुरबाणी को सुनना या नहीं सुनना। साहब कहने लगे सारियां नूं साझा संदेश है, आ जाओ गुरबाणी दे नाल जुड़ के अपना आउण वाला भविख जिहड़ा है उहनूं सुधार लो। तां ही तां सतगुरू सच्चे पातशाह जी ने उन्हां लोकां दी इज्जत मान बरकरार रखी जिन्हां नूं दुनिया दे विच दुरकारिया गया। ते साहब सच्चे पातशाह ने साझा उपदेश दे के सारियां दी झोली दे विच गुरबाणी रूपी खजाना पाया। अगे साहब ने मन्ने नानक भवे ना ऐसा नाम निरंजन होए जिको मन जाने मने। किते गुरु दे कोल बैठ के गुरु दी विचार नाल जुड़ के सहज सच्चे पातशाह नूं अरदास बेनती इस प्रकार दी कर कि दाता अपने आप तेरे इस हिरदे रूपी दे विच घर दे जिहड़ा हनेरा बनया होया है सदैवी तौर उन उजाले दे वाले गुरु नूं बेनती कर हम मैले तुम उजल कर दे दाते असीं मैले ते तुसीं उजल करने वाले। साडा मन बड़ा मैला है, संसार दे विच विचरदे होए संसार दी कल्पना वेखदे संसार दी होंद वेखदे होया सतगुरु सच्चे पातशाह जी पल पल तो पहिला असीं चढ़दे जांदे संसार दे विच विचरदे होया दातिया पल पल तो पहिला असीं चढ़ जाने हां। पर तुहाडी गुरबाणी इदां दी है, तुहाडा नाम सेवा सिमरन अभ्यास इदां दा है कि जिहड़ा एक बारी मन करके अपना लेंदा है दातिया वो अपने शरीर तो अंग अंग ते कटवा सकता है, पर तुहाडे नाल किनारा नहीं कर सकता। जिहड़ा एक बारी हिरदे च वसा लेंदा है, जदों भाई मती दास ते भाई सती दास जी नूं शहीद कर लगे भाई दयाल दास जी, इन्हां दे मुखड़े ते इक्को ही गल सी कि साडे चेहरे जिहड़े वो साडे पिता मालक दे वल होने चाहिए, गुरु तेग बहादुर जी वल होने चाहिए ने, ताकि जो असीं जांदे होए अखीरलियां साहां ते भी सहज दे दर्शन कर सकीए। उदों ये नहीं किया कि असीं इस्लाम कबूल कर लेने कोई गल सानूं छड्ड दित्ता जाए। कहण लगे जे शहीद करन ही लगे हो
ते साडी अखीरली मंग इहो ही है कि जदों सानू शहादत दा जाम पिआया जाए, साडे चेहरे साडे पिता गुरु तेग बहादुर साहब वल कर दिते जाण, ताकि जांदियां समियां अखीरले समय जदों श्वास साडे निकल ते असीं गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे दर्शन करके अपना अखीरला समा भी जिहड़ा उहनूं सफल बना। ये दृढ़ता, ये विश्वास, ये सिदक, ये भरोसा केवल गुरबाणी दे नाल जुड़ के प्राप्त होया। गुरु दी सिक्ख्या, गुरु दे सिद्धांत अपना के ये दृढ़ता भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाल दास जी दे अंदर आई सी। ते जदों भाई तारू सिंह जी दा शहीद कर लगदे ने कोपरी उतार के, ते वो भी श्री जपजी साहिब दे नाल जुड़दे ने, गुरबाणी नाल जुड़दे ने, अकाल पुरख दा ध्यान धरदे ने, कहण लगे दातिया शरीर नाशवंत है, पर तुसीं अपना मेरा पैर हाथ रखियो मेरे उत्ते, ते मैनूं इस जिहड़ी शहादत दा अज जाम मैं पीन लग्या हां, केवल तुहाडे आसरे नाल पीन लग्या, ते अपनी अपार मेहर बनाई रखी। उदों ये नहीं कहा कि मैनूं छड्ड दित्ता जावे, मैं इस्लाम कबूल कर लैना। कहण लगे जिहड़े गुरु दे नाल जुड़ चुके ने, गुरु दे नाल मन बना चुके ने, वो फिर कदे भी हनेरे विच नहीं रहते। उन्हां नूं पता है कि गुरु दे नाल किनारा करके केवल जिंदगी जिहड़ी है वो दुखां भरी बन जाएगी। गुरु दे नाल बैठे ना आनंद है, खेड़ा है, प्यार है, मंगल बनिया होया है शरीर दे अंदर, सदा मन खुशी दे नाल घूमदा पिया। ते साहिब कहण लगे कि जे गुरु दे नाल जुड़न दा अज विचार बना ही है, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने ना होए। कहण लगे एक ऐसा नाम गुरु दा अंजन है, गुरु दे प्यार वाला नाम है, जिहदे विच हमेशा चढ़दी कला अते सदैवी सुख प्राप्त होंदा है, जे को मन जाने ना कोई। फिर अंत विच साहिब कहण लगे जे कोई मन करके गुरु दे नाम नूं मन लैंदा है, कोशिश करिए कि जिन्नी भी बाणी पढ़दे पए आ, भावें एक जपजी साहिब दा पाठ करदे पए, भावें सुखमनी साहिब दा करदे, गुरु दे बचनां नूं अपनी जिंदगी च अपनाइए। जिंदगी च अपनाउण तो भाव है कि विचार करके सतगुरु दी बाणी नूं पढ़िए कि साहिब दा जिहड़ा अज शब्द पढ़िया गया है जपजी साहिब विच जां सुखमनी साहिब दी अष्टपदी नूं जिहड़ी असीं पढ़दे पए आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ, अज्ञानता रूपी जिहड़ा हनेरा साडे अंदर पसरिया पिया है उन्होंने खत्म करने लई गुरबाणी रबी चानण जिहड़ा अपने हृदय च वसा के साहिब दा धन्नवाद करते रहिए। बाणी पढ़दे होए विचार करदे होए अज जिहड़ी साहिब ने विचार बख्शी सी कि गुरु दे दसे होए हुक्म नूं अपना के जिउंदे जी इस धरती ते रह के ही उस स्वर्ग दा आनंद मान लै जिहड़े बारे विच तैनूं मरण तो बाद दस्सिया गया। कहते जिंदे जी इसे धरती ते रह के गुरु दे बचनां नूं अपना के आनंद मान लै उसे स्वर्ग दा। साहिब जी कहते कि स्वर्ग तां ही जिंदगी दे विच है जे सुख हन। जे साडी जिंदगी विच सुख नहीं ते मनुख कलपदा है, बिलखदा है, कदी अपने विकारां करके, कदी अपने आप तो परेशान रहता है। साहिब कहने लगे तेरियां सारियां तंगियां, त्रुटियां, विकार जो तू मन विच भैड़े ख्याल लैके आउणा है, एक गुरबाणी इदां दा सोमा है जिहदे विचों सिर सच्चे पातशाह अमृतमई अमृतमई बाणी दी झड़ियां लाउंदे। सो दाता जी दे अगे बेनती करदे रहिए कि मालका साडे पिछले गुनाहां नूं बख्श के अगे तो सानूं मार्ग पा दे, अगे तो रस्ता बख्श दे, ताकि तेरे गुण गाउंदे रहिए। बाणी पढ़दे विचार करदे बेअंत गलतियां भुलां हो गईयां। गुरु की सरबत संगत गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह बख्शण जोग हन। गलतियां भुला चुकां दी खिमा बख्शो जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।